67. What we did? Second bit, first question we, and I said you to do the second one. As you are solved that, find the number of ways of arranging 7 gents and 4 ladies around a circular table. Right? We did also, and we got the answer as 4,06,800. Isn't it? Remember? 4,06,000, 4,06,800, 4,06,800. Right? Now it's perfect. Video is also perfect. Abdullah Wase want to join. Abdullah Wase is also joined here. Now the next question, third question is finished. No, second question is finished, right? Now the third one, page number 177. Page number 177. Page number 177. Second bit, third question, exercise 5C. Exercise 5C. Second bit, third question. Just wait for a while because the camera is not good. It shows blur. Just wait a minute. किसी को बताइए मैं कोड कंटीन्यूअसली ब्लर हो रहा था सही हो रहा किसी को और भी मिलेगा What? No. Write down the question. Third one. My goodness. चलो बेटे क्वेश्चन तो मैं डिक्टेट कर दूंगा आप लोगों को चुप टाइम वेस्ट हो रहा मेरा मैं आप लोगों को एटलीस्ट हिंट दिया तो आप लोग सॉल्व तो कर ले सकते प्रॉब्लम
What is the question? Today's technical problem. So what is the question? Third, find the number of ways of arranging. Find the number of ways of arranging. Find the number of ways of arranging 7 guests. G-U-E-S-T. 7 guests. 7 guests and a host and a host and a host. 7 guests and a host around a circle. Around a circle. Around a circle. If two particular guests wish to sit on either side of the host, either side, EITHER, either side of the host, right? ठीक है बेटे, तो देखिए पहले इसमें एंटिटीज कितने बनने वाले हैं देख लेंगे पहले, उसके बाद में सोचेंगे फिर आगे का. There is a round table. There is a round table. Solution लिख लीजिए, ये भी गिवन लिख लो, पूरा अपना गिवन में आ जाना. ये a round table is there. 7 guests are there. One guest, second guest, third guest, fourth guest, fifth guest, sixth guest, seventh guest. 7 गेस्ट आ गए. हाँ आ गए. ये कंडीशन हो गया हमारा. देन one host is there. मे बी योर होस्ट विल बी हियर, या फिर यहां पर भी हो सकते, यहां पर भी, यहां पर भी, यहां पर भी, यहां पर भी, यहां पर. 2 पर्टिकुलर गेस्ट बोला हो, ठीक है. 2 पर्टिकुलर का मतलब आजू वाला भी होना, बाजू वाला भी, आइदर साइड्स, ठीक है. तो ये देखिए ये तीनों भी एक बन गए, नहीं बन गए, ये तीनों एक यूनिट बन गए. देखिए राइट. तो क्या हो गया अपना एंटिटी, क्या हो गया बेटे? द नंबर ऑफ एंटिटीज, द नंबर ऑफ ENTITIES, द नंबर ऑफ एंटिटीज 5%. 1 2 3 4 5% प्लस 1 साइड. अब जरूरी नहीं है कि वो यहीं पर हो. योर होस्ट विल बी in between these 2 guests, or in between these 2 guests, in between these two and these 2, or maybe these 2. So anyhow 5 guests will be one side, 2 guests and 1 host at either side. ठीक है, दोनों मिला के तो टोटल कितने हो गए बेटे? 6 हो गए. अब क्या दिया कंडीशन में? कंडीशन में क्या दिया यहाँ पर? हाँ, फाइंड द नंबर ऑफ वेज ऑफ अरेंजिंग 7 guests. आंसर लिख लीजिए. द number of arranging 7 guests, the number of arranging 7 guests and a host in which 2 particular guests sit either side. यानी वो एक एंटिटी में कितने बैठ गए? 2 गेस्ट और बैठ गए ना. यहाँ पे क्या आएगा? ये बन गया हमारा n-1 फैक्टोरियल. ये कई बार हो सकते हैं. कैसा? कभी इन दोनों के बीच में, कभी ये 2 के बीच में होस्ट, कभी इन दोनों के बीच में होस्ट, कभी इन दोनों के बीच में होस्ट. सो n-1 फैक्टोरियल इनटू, अब 2 को सेव कर ले रहे ना. नो, any 2 will be safe, any 2 will be safe, any 2 will be safe, any 2 will be safe. So 2 factorial. यहाँ पर 6 minus 1 factorial into 2 factorial. We can write 5 factorial into 2 factorial. मल्टीप्लाई करके आंसर बोले बेटे, जल्दी मल्टीप्लाई करिए और आंसर बोलिए.
आंसर यहाँ पर भी रोक सकते हैं, मल्टीप्लाई करके आंसर बोलिए. 5 factorial into 2 factorial. I am waiting for your answer. Do it fast. One 22 is for 240 ways. Very good, Abdullah. Wase, very good, Amma. 811. Roll number 811. Very good. Over. Write it fast. Over. Next question number 4th. Next question number 4th. Is this over? Done? Shall we proceed? Yes. Question number 4th. Find the number of ways of preparing a garland. Find the number of ways. Find the number of ways. Find the number of ways of preparing a garland. Find the number of ways of preparing a garland. 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 Not Nagaland. Garland. गले का हार. हाँ. Find the number of ways of preparing a garland with three yellow, YELLOW, 3 yellow, comma, 4 white, 3 yellow and 4 white, and 2 red roses, and 2 red roses. 3 येलो कलर के रेड रोज, 3 येलो कलर के रोज है, 4 व्हाइट कलर के रोज है और 2 रेड रोज है. ठीक है. 3 येलो, 4 व्हाइट एंड 2 रेड रोजेस ऑफ डिफरेंट साइज. कंडीशन में भी आ गया, ऑफ डिफरेंट साइज. ओ माय गॉड, डिफरेंट साइज. सेम साइज रहा तो कोई मसला नहीं था, डिफरेंट साइज आ गया. ऑफ डिफरेंट साइज such that the two red rows come together. ठीक है. छोटा सा गार्लैंड उतार लेंगे, पहले देखेंगे कि हमको भी आता है या नहीं आता है. ये उसकी छोटी सी मैंने डंडी बना ली है जो हमारे नेक में बैठने वाली है.
राइट। फिर उसके बाद में थोड़ा सा बाहर लेकर गया इसको ऐसा बाहर लेकर गया, ये बन गया। हाँ, कितने बेटे? सोल्यूशन गिवन येलो 4, वाइट 3, रेड 2। ठीक है, तो टोटल कितने हो गए हमारे पास? टोटल कितने हो गए? 7 + 8 9, 9 हो गए। ठीक है, ये 9 को ऐसे ही रख लेंगे। अब सोचेंगे हम 1 2 3 4, 1 2 3 4 8, एक फूल को यहाँ पे बीच में लटका डालेंगे। ठीक है, नहीं वो बीच में आप थोड़े से लिलीज लिलीज लगा लिए, और थोड़े से क्या लगा लिए उसके अंदर आप, लिली के बाद में और क्या, जैस्मिन लगा लिए, समझिए। वो बीच में खाली फ्लावर, रेड फ्लावर और येलो फ्लावर, व्हाइट, रेड फ्लावर येलो फ्लावर व्हाइट फ्लावर कॉम्बिनेशन थोड़ा अच्छा दिखना बल्कि है वो। अब देखिए कंडीशन में क्या लगाया वो। अब हमको नंबर ऑफ एंटिटीज फाइंड करना है। ठीक है, द नंबर ऑफ एंटिटीज यानी कि एंट्रीज कैसा करें आप, ENTITIES एंटिटीज इज इक्वल टू n से होगा। 4 तो 4 रहेंगे, 3 भी 3 ही रहेंगे। अब ये 2 रेड रोज एक जगह पे रहना है, तो इनकी वैल्यू क्या हो गई बेटे? 8 हो गई। कैसा? अगर मैं रखा तो ये दोनों रेड रखूंगा। कैसा रखूंगा मैं रेड? दोनों एट सेम प्लेस, दोनों बाजू बाजू आना है ना, दोनों रेड रहना। यहाँ पर पूरे आप क्या लिख दीजिए? वाइट 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 वाइट। वाइट कितने हैं? 3 है, 3 वाइट। फिर येलो 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 येलो, ऐसा रखिए। या फिर सिंपल वे, 9 फ्लावर्स है ना, कैसा भी दो आपको रेड या लेके आओ बोले, अब वो 2 रेड आप कैसा भी ले लीजिए। सिर्फ कंडीशन किस पे है बेटे? 2 रेड्स विल बी सेम साइज। ठीक है, सेम साइड पे रहना है। ये 2 रेड्स को आप यहाँ लेकर आएंगे, बीच में यहाँ लेकर आइए, यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर कहीं भी ला सकते हैं। कंडीशन सिर्फ 2 रेड्स है उसके लिए। सो एंटिटीज कितने हो गए? 8 हो गए। सो द नंबर ऑफ वेज ऑफ अरेंजिंग, द नंबर ऑफ वेज ऑफ अरेंजिंग, द नंबर ऑफ वेज ऑफ अरेंजिंग 4 yellow, 3 white and 2 red roses in a garland, in a garland, in a garland. That means n minus 1 factorial. It has two different sizes, different size into 2. फिर यहाँ पर क्या आना? 2 red rose आना, दो का है ना एक ग्रुप, 2 red rose, तो 2 factorial है ये। कैसा रहता है बेटे? याद रख लीजिए, ये है n minus 1 factorial has two different sizes। n minus 1 factorial जैसा different size different shape आ गया, by 2 कर लेना है। क्या हो गया बेटे? ये 7 factorial by 2 into 2 factorial is 2 into 2 will get cancel। 7 factorial, 7 factorial का आंसर क्या है बच्चों? जल्दी से आंसर बोलो, 7 factorial का आंसर। आई थिंक कोई बच्चे भेज दिए आंसर मेरे ख्याल से। 3 येलो 4 व्हाइट है। 3 येलो, अच्छा, ओके ओके ओके, राइट राइट फैजान, एग्जैक्टली फैजान, एग्जैक्टली 3 येलो 4 व्हाइट है बेटे। यस, कोई बात नहीं, अच्छा हुआ वो हमको फुल में ही डालना है। 3 येलो है 4 व्हाइट है, एग्जैक्टली सही है बेटे। तो यहाँ पर 3 4 वो तो सही है, 3 येलो 4 व्हाइट। तो 4 व्हाइट सही लिखा था मैं, 3 येलो बराबर लिख दिया था। गॉट इट, आंसर इज सेंड बाय दैट स्टूडेंट whose roll number is 811। सही है, सही है बेटा, 811 send the answer is yes, it's real news बेटे, रियल न्यूज ही है। सही, वेरी गुड। 625
and 811. Right answer 5040. शेप्स साइजेस अगर दिया सेम है तो बाई टू नहीं करना, डायरेक्ट कर लेना मल्टीपल। शेप्स एंड साइज अलग अलग बोला मतलब डिफरेंट डिफरेंट साइजेस के, इसीलिए बाई टू से करते हैं। एन फैक्टोरियल बाई टू ये हमारे जो एक बन गई थी एंटिटी उसके लिए है। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आ जाइए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और अक्सर ये क्वेश्चन 4 मार्क में पूछ लेता है। देखिए, दे विल आस्क दिस क्वेश्चन इन 4 मार्क्स। थर्ड बिट फर्स्ट वन, थर्ड बिट फर्स्ट वन। ठीक है, लिख लीजिए आप लोग, लिख लिए, बाद में ही आगे का देखेंगे। Shall we proceed? Third bit, first question. This is somewhat important one. देखिए, टू रोजेस कम टुगेदर दिया, वो टू रोजेस कहीं भी रख सकते हैं आप। ठीक है, कम टुगेदर यानी कि एक यहाँ नहीं डालना बोला उन्हें, एक यहाँ नहीं डालना। ऑब्वियस सी बात है, दोनों के नीचे डालना पड़ता है अपने को कम टुगेदर के लिए। ठीक है, तो उस हिसाब से देख लेना बेटे। और 9 फ्लावर्स है, 9 फ्लावर्स मतलब हमको अरेंज करना ऐसा रहता कि एक बीच में पेंडेंट के ऐसा यूज होना। अब सीधा सीधा बोल देना उन्हें कि आप हार बना रही, खराब कर दो हार बस। अगर रेड हम दोनों कॉर्नर पे डालते तो कितना प्यारा दिखता था, या नीचे के दोनों कॉर्नर पे डालते तो कितना प्यारा दिखता था। लेकिन उन्हें क्या बोले, दोनों के दोनों बाजू बाजू रहना, कम टुगेदर। खैर चलो, जहां तक क्या करेंगे अपन, उन्हें खुद अपने हाथ से हार फूलों का खराब बना लिया समझे। कम टुगेदर, चलिए थर्ड बिट फर्स्ट क्वेश्चन। थर्ड बिट फर्स्ट क्वेश्चन, find the number of ways of arranging find the number of ways find the number of ways of arranging 6 boys and 6 girls find the number of ways of arranging 6 boys and 6 girls around a circular table, around a circular table, around a circular table, so that first bit लिखिए, first bit में लिखो, so that first bit, all the girls sit together, all the girls sit together, all the girls sit together. सेकेंड बिट, मैं ये मेरे सोल्यूशन के हिसाब से लिख रहा हूं, आप लोग नीचे नीचे लिखिए, ठीक है। सेकेंड बिट, no two girls sit together
No two girls sit together. No two girls sit together. Third one. Third one. Boys and girls sit alternately. Boys and girls. Boys and girls sit alternately. Sit alternately. So what is given here in this question? There is a circular table. There is a circular table. वो टेबल पर 6 बॉयज और 6 गर्ल्स को अरेंज करना है विथ सम कंडीशंस. ठीक है, विथ सम कंडीशंस. अब कंडीशन क्या है वो पहले देखेंगे हम. पहले 6 बॉयज है 6 गर्ल्स है, पहले वो तो लिख लेंगे हम. सोल्यूशन गिवन the number of boys 6, the number of girls also 6. नंबर ऑफ बॉयज भी 6 है, नंबर ऑफ गर्ल्स भी 6 है. इन्हें सर्कुलर टेबल दोनों को भी अरेंज करना है, लेकिन सम कंडीशन के साथ. पहला वाला कंडीशन क्या है बेटे? फर्स्ट कंडीशन, वो टेबल पर, यहां पर भी है सर्कुलर टेबल. ठीक है, सर्कुलर टेबल यहां पर भी है, सर्कुलर टेबल यहां पर भी है, सर्कुलर टेबल यहां पर भी है. ठीक है ना? हाँ है सर. चलो ठीक हो गया, 3 सर्कुलर टेबल हो गए. अब all the girls sit together. All the girls sit together. That means अब मेरे पास 6 अगर बॉयज है, 1 2 3 4 5 6 बॉयज मेरे अरेंज हो गए. अब मैं बिठाऊंगा तो गर्ल्स पूरे 6 के 6 गर्ल्स को यहाँ पर बिठा लूंगा मैं. राइट, 6 के 6 गर्ल्स पूरे यहाँ पर आ जाएंगे, 6 गर्ल्स. या फिर यहाँ पर भी आ सकते हैं 6 गर्ल्स, यहाँ पर भी 6 गर्ल्स आ सकते हैं, यहाँ पर भी आ सकते हैं, हियर ऑल्सो, हियर ऑल्सो. इन दोनों के बीच में तो आ चुके. ठीक है, तो हमारे एंटिटीज कितने हुए? द नंबर ऑफ एंटिटीज n is equals to 6 प्लस ये एक साइड 1 is equals to 7. हो गया बेटे? हो गए ना? वो एक साइड कहीं भी आ सकता है. 7 एंटिटीज हो गए हमारे, यानी कि ये एक पार्ट जो था हमारा, ये एक यूनिट हो गया. एक यूनिट में पूरे गर्ल्स बैठना. अब वो यूनिट यहाँ पर भी घूम सकता है, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी. ओके राइट सर, एन आ गया. अब नंबर ऑफ वेज ऑफ अरेंजिंग, देयरफॉर द नंबर ऑफ ways of arranging देखिए, n-1 फैक्टोरियल इनटू गर्ल्स कितने हैं? 6 है सर, 6 फैक्टोरियल, विच इंप्लाइज n क्या है बेटा मेरा? 7 फैक्टोरियल है. कैसा 7 - 1 होता? हाँ, 7 - 1 फैक्टोरियल इनटू 6 फैक्टोरियल. थोड़ा सा मैं इसको रब ही कर देता हूँ बेटे, थोड़ा रब कर देता हूँ मैं, ताकि वो बहुत ज्यादा कंजेस्टेड हो जा रहा है, अच्छा नहीं दिख रहा. सो n-1 फैक्टोरियल इनटू ये 6 के है. ठीक है, गर्ल्स के है ये 6 फैक्टोरियल. 7 - 1 फैक्टोरियल इनटू 6 फैक्टोरियल, तो ये बन गया 6 फैक्टोरियल इनटू 6 फैक्टोरियल. यानी कि अब देखिए, समझिए मेरी बात, जो मैं ये एरो डाला ना, ये एरो गर्ल्स में भी सिट, all 6 girls may be sit between these 2 boys, or between these two, how many times they are changing? 1 2 3 4 5 6 times. That's why 6 has, girls has
सिक्स अपॉर्चुनिटी टू, अब अपॉर्चुनिटी बोलो क्या कर सकते हैं, 6 अपॉर्चुनिटी टू सिट एनीवेयर ऑन द टेबल, ठीक है। और यहाँ पर जो हमारे एंटिटीज है वो एंटिटी क्या रहेंगे, 6 ही रहेंगे। कैसा, 5 लड़के, वो जहां बच्चियां बैठी है 6, ये वही है, 5 लड़के प्लस 1 ग्रुप ऑफ गर्ल, 6 एंटिटीज हो गए, तो टोटल 6 into 6 होने वाला है। बस इतना ही है इसका आंसर, टेक्स्ट बुक में हम यहीं पर रोक देंगे, ठीक है। नाउ द सेकेंड वन, ये थर्ड को मैं ड्रॉप कर देता हूँ बेटे, सेकंड वाला आसानी से जाएंगे बेटे, बहुत आसान है। अगर हम इसको अगर थ्योरी कम लिख करके डायग्रामेटिक अगर हम समझ जाएंगे तो वल्लाह सबसे आसान चैप्टर लगेगा ये, ठीक है। देखिए आपको, देखिए 6 के लिए, 6 गर्ल्स के लिए, 6 गर्ल्स के लिए 6 वेज है, इवन दो फॉर द कंप्लीट अरेंजमेंट 6 वेज आर देयर, दैट वाई 6 वेज फॉर द कंप्लीट 12 स्टूडेंट, 12 persons, ठीक है, एंड 6 ways for the arranging of girls in 6 way। नेक्स्ट सेकेंड बिट क्या थी बेटे, हाँ सेकेंड बिट थी हमारी, सॉरी, या अल्लाह या रहमान, नो टू गर्ल्स सिट टुगेदर, नो टू गर्ल्स sit together, no two girls sit together, no two girls sit together, क्या मतलब, सीधी सीधी बात है ये, दो गर्ल्स साथ में ना बैठना बोले लो, यानी कि बॉय 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 बॉय, 3 3 6 हो गए। नो टू गर्ल्स सिट टुगेदर, 2 गर्ल्स बाजू बाजू नहीं बैठना, यानी बाजू बाजू नहीं आना। वहां 6 को साथ बिठा दी तो कुछ भी नहीं, अब यहाँ 2 गर्ल्स बाजू नहीं बैठना बेटे, वहां पर कितनी बात कर लिए होंगे उन लोग, यहाँ बात करने नहीं दे रहे हैं। कहाँ बिठाना लोगों को, अब गर्ल्स 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 गर्ल्स, ऐसे आता, ऑल्टरनेट भी ऐसे होता ना, फिर ये ऑल्टरनेट का भी ऐसे ही होता ना ये, नो टू गर्ल्स सिट टुगेदर बोल रहे हैं, तो दो गर्ल्स सिट टुगेदर है, क्या करेंगे इसको, नंबर ऑफ एंटिटीज तो देख के देखो पहले, द नंबर ऑफ ENTITIES एंटिटीज n इज इक्वल्स टू, पहले तो 6 बॉयज है, ओके 6 बॉयज है, अब 6 है ना बॉयज, 6 नो टू गर्ल्स सिट टुगेदर है, तो आंसर कुछ आएगा बेटे, जिसके पास से आंसर आ गया ना, सर फिर मिडिल टर्म कैसा आता, सर फिर मिडिल टर्म कैसा आता, मिडिल टर्म आया ना बेटे, पर मिडिल टर्म लिए ही नहीं यहाँ पर, नो गर्ल्स सिट टुगेदर बोले ना, 2 गर्ल्स सिट बाजू बाजू नहीं बैठना है ना बेटे, 2 गर्ल बाजू बाजू नहीं बैठना है, तो क्या करेंगे अपन इसमें, एक कंडीशन क्या दिया उन्होंने, ये कंडीशन माइनस कर डालेंगे, क्या कंडीशन है, 6 - 1 फैक्टोरियल, समझ जाइए ये, ठीक है। तो इसको हम एंटिटी लेने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी ना, एंटिटी लेने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी इसमें हमको, क्योंकि उन्होंने खुद क्वेश्चन ने बता दिया यहाँ पर 2 गर्ल्स साथ में नहीं बैठना है, 2 गर्ल्स साथ में नहीं बैठना है, यानी कि 6 बॉयज बैठ सकते, 6 बॉयज बैठ सकते, फिर गर्ल्स कैसा अरेंज होता, ऐसा अरेंज होता, लेट्स सी, बॉयज बॉयज गर्ल्स बॉय, फिर बॉय, फिर गर्ल्स डाल देंगे, ठीक है। 2 बॉय को बिठा के देखेंगे एक बार, फिर बॉय बिठाएंगे, फिर गर्ल, बॉयज हो गए, फिर बॉय, फिर गर्ल, तो कैसा हो रहा है देखो बेटे, बॉयज को हम 2 को ले सक रहे हैं यहाँ पर साथ में, गर्ल 1, गर्ल 2, गर्ल 3, गर्ल 4 हो गए, और 2 गर्ल्स बच गए हमारे, वो 2 गर्ल्स को अगर हम यहाँ बीच में ला देंगे, साथ में तो ना बैठना है कैसा भी, 5 तो 1 6 गर्ल्स हो गए, यस। So the number of ways of arranging, direct लिख डालो, the number of ways of arranging
5 फैक्टोरियल इंटू 6 फैक्टोरियल। तो ऑल्टरनेट का आंसर इसका आंसर सेम ही चाहिए, थर्ड बिट का भी आंसर सेम ही आता है ना बेटे। द नंबर ऑफ वेज ऑफ अरेंजिंग, द नंबर ऑफ वेज ऑफ अरेंजिंग 6 बॉयज को हम अरेंज कर सकते, तो इनको हम एक कैंडिडेट बना लीजिए, ठीक है। 6 बॉयज में नो चेंजेस, बट गर्ल्स में है वहां पर 6 बॉयज एंड 6 गर्ल्स, but no two girls sit together. That means 6 minus 1 factorial into girls, तो 6 के 6 रस्ते में बैठेंगे, गर्ल्स से 6 के रस्ते में बैठेंगे। 5 फैक्टोरियल इंटू 6 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल इंटू 6 फैक्टोरियल, बराबर है। एंटिटी बनाने की जरूरत नहीं पड़ती, यहाँ पर हर कोई ऑल्टरनेट के हिसाब से बैठ जा रहे हैं। कंडीशन किधर लगाया, गर्ल्स में लगाया, इसीलिए गर्ल्स को 6 फैक्टोरियल हो गए। बॉयज को क्या करा उन्हें, कंडीशन नहीं लगाया, यानी कि एक चीज से महरूम हो गए। क्या, यहाँ पर बॉयज पूरे साथ बैठ रहे थे, गर्ल्स पूरा एक ग्रुप था, वहां पर एंटिटी बनी। यहाँ पर देखिए आप, गर्ल्स पूरे 6 तरीके से बैठ सकते हैं। 6 gaps are there, so we filled 6 gap because there is no girl sit together, ठीक है, नहीं बैठे वो लोग, but boys lose the chance, at least they can sit, 2 तो बैठ सकते थे, लेकिन उसमें भी लोग एक काम आ गया, इसीलिए 5 minus 1 factorial, 5 minus 1 factorial कहीं पर आए बेटे, 1 2 3 4 5 6 बॉयज है, 6 बॉयज तो अरेंज हो गए, ठीक है। चलो ये लिखो, ऑल्टरनेट का भी आंसर सेम यही आता फिर। अब बॉयज एंड गर्ल्स सिट ऑल्टरनेटली, हाँ सेम आंसर है बेटे, थर्ड बिट भी सेम ऐसे ही होता, खाली क्वेश्चन में घुमाया हो अपने को। थर्ड बिट आप लाइन लिख लो। Yes, I got it. Listen here. Here there is no, देखिए ये जो माइनस है ये कैसा है, देखिए बेटे, here there is no disturbance for the boys, that's why n minus 1 factorial, ये हमारा n बन गया था, ठीक है, ये हमारा n बन गया था। अब ये n गर्ल्स में तो चेंजेस आ गए ना, ये तो हमारे बॉयज है, बॉयज में नो चेंजेस, सर्कुलर में अगर जब भी हम उसको कन्वर्ट करेंगे तो n माइनस 1 लिखना है ना हमको सर्कुलर में, तो इसीलिए बॉयज में नो चेंजेस, 6 minus 1 factorial, right, now I got it, 5 factorial and 6 factorial, ठीक है। गर्ल्स के लिए अरेंजमेंट है, 6 gaps filled by 6 girls, 6 gaps filled by 6 girls, but boys are arranging in a table, round table, whenever it is circular, so we have n minus 1 formula, remember, yes, that only we used here. यहाँ पे ऐसा छोटा लिख लो बेटे, ये बॉयज है 6 बॉयज टेबल पे पहले एडजस्ट कर दिए, एडजस्ट करने के बाद वो एक सर्कल में है, इसीलिए n माइनस का फॉर्मूला आया। देन गर्ल्स फिल्ड ऑल द गैप्स, देन गर्ल्स फिल्ड ऑल द गैप, राइट, नाउ इट्स परफेक्ट, अल्हम्दुलिल्लाह। थर्ड बिट, थर्ड बिट ऑल्सो वो भी करा देता हूं मैं, देख लीजिए आप लोग।
Third bit, boys and girls sit alternately. Sit alternately. ये मेरा सर्कल है. अब आप पहले किसको एडजस्ट करने वाले हैं, गर्ल को या बॉय को, आपके ऊपर डिपेंड करता है. लफ्ज से जो भी पहले यूज किया जाएगा, जो भी पहले प्लेस पे बिठाया जाएगा, जिसको भी पहले प्लेस पे बिठाया जाएगा, उसके लिए n-1 है. याद रख लीजिए, ठीक है. वंस अगेन मैं इस बार क्या कर रहा हूँ, गर्ल्स को थोड़ा कम कर रहा हूँ भाई, क्योंकि हमेशा गर्ल्स उसमें आ जा रहे हैं, मेजोरिटी में आ जा रहे हैं. गर्ल्स 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 गर्ल्स. 1 2 3 4 5 6. हाँ, तो अब यहाँ पे क्या हो गया, 6 - 1 फैक्टोरियल, ये गर्ल्स के लिए है. अब 1 गैप फॉर बॉय, 2 गैप फॉर बॉय, 3 गैप फॉर बॉय, 4th गैप फॉर बॉय, 5th गैप फॉर बॉय, 6th गैप फॉर बॉय. इस बार हम क्या करें, 6 फैक्टोरियल ले लिए. तो दोनों का भी आंसर सेम है, 5 फैक्टोरियल 6 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल 6 फैक्टोरियल. यहाँ पर आपको बॉयज को कुछ नहीं करना था, बॉयज जैसा चाहे वैसा बैठ सकते थे, लेकिन कंडीशन गर्ल्स पे लगाया, इसीलिए ये आपका एन बन गया, इसीलिए एन मैसेज बना लिए. हम यहाँ पे क्या करें, बॉयज और गर्ल्स दोनों में से किसी एक को आपको कैसा भी राउंड टेबल पहले बिठाना है. तो जब भी राउंड टेबल बिठाएंगे हम, वो n-1 फैक्टोरियल कहलाएगा. It is n-1 factorial. So here we use for boys or any girl. You can write 6 - 1 is same. These two answers are same. Don't be panic. Just the condition is different. यहाँ पर no two girls बोला, इसीलिए हम boys को स्पेशली बनाए यहाँ पर, और यहाँ पर न boys के लिए न girls के लिए. तो अब जिस किसी को भी n बनाओगे, that should be n-1 factorial, because we are arranging on a round table. Finished. Finished? Completed? What happened, girls? Not replying. सर थर्ड बीट में 6 - 1 होता क्या? हाँ बेटे होता. पहले आप गर्ल्स को अरेंज कर रहे हैं, तो 6 - 1 करेंगे हम. देन 5 गैप फिल्ड विद बॉयज. अगर हम पहले बॉयज को अगर हम अरेंज करेंगे, because on a circular table whatever will be the n, it should be n-1 factorial. That's why ऐसा लिख लेना. पहले पहले गर्ल्स को अरेंज करें तो 6 - 1 होगा. अगर हम बॉयज को ले रहे हैं तो बॉयज के लिए. अब यहाँ पर दोनों सेम सेम रहने से पता नहीं चला. ठीक है, चलिए लिखिए. फैजान, and girls what happened? Yes, that's okay.
Now the second question is similar as the third bit, last question. फुल वाला जो था ना, हाँ, येलो व्हाइट एंड रेड सी के ऐसा है, वो आप लोग सेकंड कर लीजिए। टेक्स्ट बुक हो गए शायद आप लोगों के पास, या मटेरियल होगा, या कुछ ना कुछ तो आने वाला है, या आ गया भी होगा शायद, तो उसमें से कर लीजिए। राइट, नाउ गो फॉर द नेक्स्ट वन। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम एंड दे आस्क्ड दिस क्वेश्चन इन 2020। They asked this question in 2020. Write down. A round table conference is attended. Question number third. A round table conference, a round table conference is attended by, a round table conference is attended by three Indians, comma, three Chinese, comma, three Canadian, Canadians, Canadians, and two Americans, What is given here? A round table conference है जो attend किया गया, three Indians, three Chinese, three Canadians, and two Americans. Full stop. Find the number of ways of arranging them. Find the number of ways. Find the number of ways of arranging them. At the round table. At the round table. So that the delegates, 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 जो बाहर से बुलाया था ना, delegates बोलते हैं, ठीक है? So that the delegates belonging, to same country, sit together. ठीक है? थोड़ा सा लॉजिक है क्वेश्चन में, बहुत आसान है, लेकिन थोड़ा सा लॉजिक है लेकिन बहुत आसान है। चलो चलें देखते हैं। मैं इसे घुमा के एक ही बार में खत्म कर दूंगा सोच रहा हूं। कैसा सर? ये मेरा एक राउंड टेबल है, कॉन्फ्रेंस ये राउंड टेबल पे हो रही है। बोर्ड इज क्लियर टू ऑल? इज द बोर्ड इज क्लियर टू एवरीवन? जस्ट रिप्लाई मी। The complete circle is visible to you? No? No. Some brightness is there, right? Yes, Faizan Ahmed. Exactly. Some brightness is there. Yeah, exactly. Just wait. I'll try to manage it. I'll do one thing. We'll study in candlelight. Okay. कैंडल लाइट डिनर सुने होंगे आप लोग, हम कैंडल लाइट में पढ़ेंगे। देखो बेटे, अगर अच्छा लग रहा है और बोर्ड क्लियर है तो मैसेज कर देना। Now it's okay to everyone? I think it's looking good, right? Yes.
Yes, it's looking good. From my side, it's okay. And what about your side? Yes, exactly right. Now it's clear. Okay. थोड़ा सा अंधेरे में है, यानी कि पढ़े भी अब हमको ऑनलाइन पढ़े भी थोड़ा अंधेरे में पढ़ना है ताकि और आंख हमारी खराब हो जाए। यही चाहते हैं दुनिया वाले। चलिए अब तो आप आ जाइए यहाँ पर। पहले तो कंट्री कितने हैं देखेंगे हम। ठीक है, C1 C2 C3 C4 से जाएंगे। ठीक है, कम टू द पॉइंट। अच्छा, बहुत प्यारा प्रॉब्लम बेटे, एक डायग्राम के अंदर पूरा बर्खास्त इंशाअल्लाह। गिवन दैट Indians, 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 how many Indians are there? 3 Indians are there. है 3 Indians, number of Indians are 3. Next, Chinese, CHINESE, ये बेटे Chinese की spelling CHINESE, Chinese is also 3. Canadians, CANADIANS, Canadians are also 3. And Americans, AMERICANS, Americans is 2. ठीक है, ये तो हो गया। अब मैं काम करूंगा, अब मैं जब इतने बड़े सर्कल पर वो लोग को लाके बिठाऊंगा तो थोड़ा सा ऑड लगेगा ना। आई सी समझने के लिए प्रॉब्लम होगी। तो आई गिव देयर नेम एज कंट्री 1 नाम दे देंगे, कंट्री 2, country 3 and country 4. 4 countries are there, that's why we are taking. ठीक है, given that the number of delegates of DELEGATES, delegates of Indians 3, Chinese 3, Canadians 3, Americans 2. चलो एक लाइन से बच गए हम अल्हम्दुलिल्लाह। ऊपर ही लाइन को एडजस्ट कर दिया मैंने। गिवन दैट द नंबर ऑफ डेलीगेट्स ऑफ इंडियंस 3 है, चाइनीज के 3 है, कैनेडियन के 3 है, अमेरिका के 3 है। अब चलो सपोज करो यहाँ पर इन कंट्री 1 बैठे, यहाँ कंट्री 2 बैठे, यहाँ पर कंट्री 3 बैठेंगे और यहाँ पर कंट्री 4 बैठेंगे। कितने एंटिटीज हो गए बेटे? 4 एंटिटीज हो गए, राइट। देयरफॉर n is equals to 4 ways, है नहीं, है 4 तरीके। अब कैसे ही बिठाइए आप, इधर भी बिठा सकते हैं, इधर इधर इधर। C1 यहाँ पर करिए, C2 यहाँ पर करिए, C3 यहाँ करिए, C4 यहाँ पर करिए, एज यू विश। C1 C2 C3 4। ये थोड़ा सा ऑर्डर में नहीं जा रहा, इसको हम ऐसा ऑर्डर में लिख लेंगे। मर्जी आपकी, किधर बैठाओ बुलाने, कोई ऐसा कंडीशन तो नहीं लगाया। तो ये हमारा आ गया कंडीशन। देयरफॉर खलास हो गया आंसर, अब खत्म। देयरफॉर द नंबर of ways of arranging the delegates the number of ways of arranging the delegates, बस इतना ही काफी है। n-1 पहले हमको एंटिटी लिखना है, n-1 ताकि 4 है उसमें कंट्रीज, n-1 into 3 Indians, 3 Chinese, 3 Canadians and 2 Americans। ये क्यों लिखे बैठे हम? शायद वो C1 पहली वाली कंट्री यहाँ बैठी होगी, यहाँ बैठी होगी, यहाँ बैठी होगी, यहाँ बैठी होगी, यानी इसके लिए 3 रास्ते और हैं। इसीलिए यहाँ पर क्या रहा देखो, 4 - 1 3 फैक्टोरियल आ गया, दैट मीन्स 3, यानी C1 के लिए 3 रास्ते और बाकी है, C4 के लिए और 3 रास्ते बाकी है, C3 के लिए yes still 3 ways are there, C2 के लिए yes still 3 ways are there, so I can write 3 factorials into 3 factorial। ये तो कैनेडियन है जो ना साथ बैठे थे ना, वो ये वो वाले हैं। ये कितने तरीकों से कैसा 3-3 बैठ सकते into 2। चलो बेटे जल्दी यहाँ से सॉल्व करके बोलिए इसका फास्ट, बस थ्योरी से बच गए हम, आसानी से हो गया। ये 3 फैक्टोरियल इसका है, 1 2 3, ये 3 फैक्टोरियल वहां के 3 कंट्रियों के हैं, एक आ गया। जल्दी आंसर बोलिए, डू इट फास्ट।
बेटा कैलकुलेटर यूज नहीं करना, माइंड यूज करना। गर्ल्स के पास इतना जल्दी आंसर आ रहा था, मेरे को डाउट भी आ जा रहा। देखो बेटे 2592, 2592, यस एग्जैक्टली राइट, 2592 एग्जैक्टली राइट। अम्मा थोड़ा सा मेरे को डाउट हो रहा है बेटे, इतना जल्दी भी अगर आप आंसर भी जाएंगे तो मैं समझूंगा कि टेक्स्ट बुक है, या फिर आप पहले से मेरे साथ लिख लेना, समझाऊंगा। ओवर। चलो बेटे नई टॉपिक शुरू करेंगे, इसके बाद के दो क्वेश्चंस हैं, वो बिट्स का एक है, एक और एक कौन सा वाला है, एक बिट्स का है और एक फैमिली ऑफ कंसिस्टिंग का एक है। दो क्वेश्चन बहुत आसान है ये, अगर आप लोग इसको सिंपल एक डायग्राम ड्रॉ करके कर ले तो इंशाल्लाह आ जाएगा, राइट। वेरी गुड अब्दुल्ला वासे, 2592 is the right answer. Now we'll enter in a new topic, that is exercise 5D. In this one we have some easy problem. थोड़ा सा एक छोटा सा डेफिनेशन है, वो डेफिनेशन लिख लेंगे, उसके बाद हम आगे बढ़ जाएंगे। चलिए, shall I rub this? Now, the new topic is, again we are discussing about the permutation. First time we learn about the linear permutation with repetition and without repetition, right? With repetition and without repetition. And second one, we learned about the repetition with circular, right? Circular permutation is also repetition without repetition. पहले linear पढ़े थे, repetition without repetition, फिर उसके बाद हम सर्कुलर पढ़े, उसमें भी रिपीटेशन विदाउट रिपीटेशन पढ़े, और अब इस बार जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो देखिए, दोनों की मिली भगत है, समझिए आप। नेक्स्ट टॉपिक, परम्यूटेशन, permutations with constraint, constraint,
repetition, repetitions, permutation with constraint, repetitions. आइए, नहीं दिख रहा है बेटे? दिख रहा है ना? थोड़ा सा जूम इन कर लूं क्या? इसमें फर्स्ट वाला पॉइंट लिख लीजिए. Point first, the number of linear permutation of n things, the number of linear permutation, the number of linear permutation of n things, in which p things are alike and the rest are different is n factorial by p factorial. ये हमारा मेन फॉर्मूला है. I will explain you it. I will explain you this one. Don't worry. ठीक है, थोड़ा सा समझ आइए यहाँ पर. एक मिनट, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है. इसी के पॉइंट ऑन हमको एक छोटा सा डेफिनेशन लिखना है. सपोज मेरे पास एक वर्ड है, एक वर्ड मैं लेने वाला हूं. वो वर्ड में एक लेटर कितने बार रिपीट हुआ देखेंगे. ठीक है, एज एग्जाम्पल सपोज SKY, sky. Number of letters 3. So directly I can write as per this formula n factorial by p factorial. n factorial क्या है बेटे? 3 factorial है. Is there any word is repeating here? Repeating? Any repetition? Any word is repeating here? No repetition. So simple, we can't write anything. Simply we can write it as 3 factorial. Suppose करिए EARS, इसमें भी पूरे लेटर एक एक आ गए, तो इसका भी खाली 4 होता. और कौन सा लेंगे भाई? राइट, MADAM, madam. Got it? In this letter we have n value is 5. 1 2 3 4 5, in which 2 m's are there, 2 a's are there. Got it? तो अब आंसर हम as per this, how we can write the answer? n factorial by p factorial. अगर एक रहा तो p, दो अगर लेटर्स रिपीट हो रहे हैं तो PQ, और अगर 3 हो रहे हैं तो PQR. So directly we can write 5 factorial by 2 factorial into 2 factorial. You have to leave the answer like this, or else you can do in this way: 5 factorial by 2 factorial whole square. That's it. मल्टीप्लाई करके एक्सपैंड करने की जरूरत नहीं रहती, बस ऐसे ही लिख देना. ठीक है, चलिए ये था हमारा एग्जाम्पल. अब आ जाइए, द नंबर ऑफ लीनियर परम्यूटेशन. द नंबर ऑफ लीनियर परम्यूटेशन, अगर कोई आपका लीनियर परम्यूटेशन है ऑफ n थिंग्स, उसके अंदर कुछ n थिंग्स है, n थिंग्स 3, n थिंग्स 5 है ना, n थिंग्स है, इन विच p थिंग्स आर अलाइक. अलाइक मतलब रिपीट होना, लाइक सेम सेम रहना. जैसे कि यहाँ पर 2 mm लाइक है नहीं है, दोनों सेम सेम है. सेम क्या? सेम ही है. AA is also like. So alike, अगर उसमें alike रहेंगे, सेम रहेंगे, and the rest are different, उसके बाद बाकी के कुछ भी डिफरेंट रहे तो फॉर्मूला ये बनेगा n factorial by
P is alive, P factorial. यहाँ पे वैसे था, डिफरेंट कौन था, एक D था बेचारा, तो 5 factorial by 2 factorial to 2 factorial. This is the one example, right? Write down this one. Is this finished? ये मैं एग्जाम्पल मेरा रब कर दे रहा हूँ, इसके प्रॉब्लम कराऊंगा ना, बेफिक्र रहिए, डोंट वरी. चलिए हो गया, जल्दी बोलो बच्चों. Second point, the number of linear permutation, इसमें पूरे linear ही रहेंगे, of n things, in which there are P like things of one kind. Q like things of second kind. R like things of the third kind. And the rest are different. Then we can write it as n factorial by p factorial into q factorial into r factorial. समझाऊं, आगे बढ़ेंगे. एक 5 क्वेश्चन कर ले सकते बेटे, आसानी से कर सकते. एक मैं कराऊंगा, बाकी के आप लोग कर लेंगे, ठीक है.
Again we have the linear permutation here. Circular में नहीं है, linear permutation में है ये. The number of linear permutations of n things, n number of things are there in which some element p likes. like term है p, p जैसे like term है, यानी कि p 3 बार है समझिए, q 2 बार है समझिए, या r कुछ और है समझिए. ठीक है, ऐसा ही है. तो यानी कि 3 अगर कंडीशन दिए दिया ऐसा, वो n नंबर ऑफ थिंग्स में, n नंबर ऑफ थिंग्स में, n नंबर ऑफ थिंग्स में p लाइक द फर्स्ट काइंड, एक जैसे p वाले टर्म्स है, फिर q वाले टर्म्स दूसरे टाइप के हैं, फिर तीसरे वाले सेम लाइक है, वो अलग है. तो ऐसे जब भी आ जाएगा तो रेस्ट ऑफ ऑल दी अदर्स आर डिफरेंट. उसके बाद दो डिफरेंट है उसको छोड़ देना, directly n factorial by p factorial, q factorial, all factorial. Do it fast. We'll solve some questions. Just 6 to 7 minutes are left. Inshallah, we'll try to complete it. As soon as you finished, please message me. I'm going to start the problems based on this one. Exercise 5D. First bit, first question. First bit, first question, and the page number is 170, 181. 181 is the page number. ठीक है, हो गया? Shall I start? 6 क्वेश्चन हो जाते बेटे 6 मिनट्स में. 6 क्वेश्चन हो जाते 6 मिनट्स में. यस, फिनिश्ड हो गया बेटे. थोड़ा सा देखिए, मैं स्पीड जाने वाला हूं, आप लोग भी थोड़ा मेरे साथ साथ चलेंगे तो बेहतर होगा. अगर कोई नहीं लिखे तो स्क्रीनशॉट ले लो बेटे, बाद में लिख लेना. सिर्फ मैं बेटा किया यहाँ से सेकंड और दी नंबर का एन गया, दी नंबर का एन गया, सिर्फ यहाँ से पूरा दी गया एन गया और ओ एफ ऑफ है. चलिए से स्क्रीनशॉट ले लो. 1 2 3 क्लिक. चल, एक क्वेश्चन लिखेंगे, उसमें 6 स्मॉल बिट्स है, एक ही बार में पूरे प्रॉब्लम हो जाएंगे इंशाअल्लाह वज़ीम. बहुत आसान है. 2 मार्क्स में एक क्वेश्चन पूछ लेता है वो. कभी कभी बच्चों का अगर मूड अच्छा रहा तो, मतलब सॉरी लेक्चरर्स का अगर मूड अच्छा रहा तो एक एग्जाम में आया था बेटे. फाइंड द नंबर ऑफ वेज ऑफ अरेंजिंग. राइट डाउन द क्वेश्चन. फर्स्ट वन, फाइंड द नंबर ऑफ वेज. मैं ही लिख देता हूँ बोर्ड पे, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे. फाइंड द नंबर, एन भी स्मॉल ही लिखो ना भाई, कहीं क्या से उसको प्रायोरिटी दे रही. फाइंड द नंबर ऑफ वेज, फाइंड द नंबर ऑफ वेज ऑफ अरेंजिंग of arranging the letters, of arranging the letters of the words. First bit, independence. Independence. Second bit, मैथमेटिक्स. पूरे कैप्स लेटर में लिखिए. मैथमेटिक्स. थर्ड, सिंगिंग. आई वाह, SINGING, सिंगिंग. फोर्थ, यस, अवर चैप्टर परम्यूटेशन. मैं एक प्रॉब्लम कराऊंगा, बाकी पूरे अपना घर में कर लेके लाना. फिफ्थ, एग्जैक्टली जब परम्यूटेशन आया तो कॉम्बिनेशन में आएगा ना, कॉम्बिनेशन. एंड द सिक्स्थ वन इज वेयर यू आर नाउ. यस एग्जैक्टली, इंटरमीडिएट. चलिए, पूरा कवर कर दिया मैंने. आप इंटरमीडिएट से पीएंड्स में पहुंच गए.
चलिए, yes, come to the point here. What we have first, what we have independence. चलो बेटा, एक ही प्रॉब्लम कराऊंगा मैं, उसके बाद आप लोग पूरे का पूरा होमवर्क लिख लीजिए, एक ही प्रॉब्लम कराऊंगा मैं, ठीक है? ठीक है। The word independence, INDEPEN, independent, ENCE, बराबर है? ENCE, independence, right? How many letters? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. Yes, the word independent has 12 letters. 12 letters in which, चलो बेटे पहले आई देखो, आई एक ही है, छोड़ दो एन, इन विच एक एन, दो एन, तीन एन, इन विच 3 एन्स, कॉमा, हो गया एन्स का काम, 1 2 3 4, 4 ईस, ऐसा लिखना, ईस भी हो गए, ईस हो गया, ई हो गया, ई हो गया, ई हो गया, और आई डी पी, और कुछ है, आई सी, सी भी एक ही है, खलास, बस 4 3 7 8 9 10, डी 2 बार है, हाँ राइट, डी 2 डीस, 2 डीस, राइट। अब ये कितने हो गए बेटे? 4 7 8 9 10 11 12, राइट, बराबर है। So how we can write it as? N factorial by 1 2 3 है ना, P factorial, Q factorial, R factorial. N factorial is 12 by, now write down 4 factorial, 3 factorial, 2 factorial. Rest of all these are homework, लेकिन अभी करके बताना, ठीक है? पूरे के पूरे होमवर्क में ये अभी करके बता देना। चलिए, अल्लाह हाफिज, इंशाल्लाह कल मिलेंगे। पहले स्क्रीनशॉट ले लो, मैं क्लास को लीव कर रहा हूं क्योंकि दूसरी क्लास का टाइम हो गया बेटे। जल्दी से पहले स्क्रीनशॉट ले लो, प्रॉब्लम भी आ रहा था, क्वेश्चंस भी आ जाते। चलिए, अल्लाह हाफिज।